Hello, good morning to all of you. Good morning, ma'am. हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, ma'am. ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम लोग आज करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डीएफए एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स रेगुलर लैंग्वेजेस. ओके, सो फर्स्ट एक एग्जाम्पल जो है हम लोग मैं आपको करवाती हूँ एंड देन नेक्स्ट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. राइट. Okay, the first example is to construct a DFA that accept the language, and the language is given as there are only two strings which are included in this language created from 0 and 1, and the languages strings are 0 1 0 and then 1. Now how would I be generating these automata for this? That firstly I will just create a string, a set of states and transition flows for only the accepted strings, like this. What I have done is I have taken a string from here which is just one. So one state is there which is a starting state, and I have just created a flow that after transition towards q epsilon given as an alphabet 1, it should be changing to a final state which is q1. This is quite simple. Now the next string is 0, 1 and 0. Now we have to just check that if we can generate that string from this path. No, because this string is starting from 1, whether the next one is starting from 0. So I have to generate a different path followed by 0, 1 and 0, and then the final is going to be our final state with double circles. So what I have done is I have simply created, you can take your states as any number. Like here I have taken q epsilon because an epsilon input is given here. Then moving on, when 0 input is given, it will become 0, q0. After 1, the path is 0, 1. So the state name is q01. This is up to your choice. You just have to mention that which one is your final stage, which one is your initial state, and what are the transition flows. That is totally up to you. Now this is the automata for only accepted states. We can see that firstly we have generated for 1 and then for 0, 1 and 0. Now a simple finite automata machine says that for every state which is there in that automata, we have to create all of the possible input symbols. We have to give all of the possible input symbols for that particular state. तो अगर हमें एक डीएफए जनरेट करना है और हमें हर एक स्टेट को एट द एंड चेक करना पड़ेगा कि अगर वहां से अगर हम नया इनपुट एक दें, एक नया ट्रांजिशन अप्लाई करें, और ट्रांजिशन जो कि हमारे अल्फाबेट सेट में इंक्लूडेड सारे अल्फाबेट्स को कवर करे, तो ये रिक्वायर्ड है. अब हमें पता है कि आर अल्फाबेट सेट इज हैविंग ओनली two numbers 0 and 1. That means that for every state the outgoing arrows, the transition flows should be about 0 and 1 both. Now this is based on the accepted state what we have generated. Now starting from the first state we have to check that whether it is covering 0 or 1 or not. So at q epsilon we have checked that for 0 we have a path, for 1 we again have a path. That means q epsilon is complete. Moving on, if I came to q1, for q1 when the input is given for 1 and 0, I have no defined path here. So simply what I can do is I can generate a flow from here and say whether it is going to be a 0 or 1, this is going to be reject. So अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमें सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिशन बनाना है. उसी सिंगल ट्रांजिशन में अगर मैं दोनों चीजें लिख दूं कि 0 और 1, क्योंकि 1 0 और 1 1 ये दोनों स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड नहीं है, तो हम लोग इसे एक ही ट्रांजिशन में लिख सकते हैं. अगर 0 या 1 कुछ भी आता है तो आप यहाँ पे एक नई
नई स्टेट बनाओ कुछ किसी भी नाम से, किसी भी रैंडम नाम से, और उस चीज को क्या है आप सिंगल सर्कल रखो। तो क्या होगा कि अगर आपके पास वैसी कोई भी स्ट्रिंग आएगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या है रिजेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली when we move towards q0, we can see that for any input symbol 1 we have a transition, but for 0 we don't have any. So what we can do, we can create another symbol for 0 which corresponds to any dead state or any state with a single circle. तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेड स्टेट जो है बनाया हुआ है, तो उसी के साथ अगर आप इसे कनेक्ट कर दोगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास Q0 के लिए 1 और 0 दोनों पाथ डिफाइन हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर Q0 एंड 1, यहाँ भी 0 का पाथ डिफाइंड है, आपको 1 के लिए पाथ डिफाइन करना है, उसे भी आप डेड स्टेट की तरफ या फिर एनी स्टेट विच इज हैविंग अ सिंगल सर्कल वहां पर आप लेकर जा सकते हो। सिमिलरली फॉर Q0 1 0, अब जब मेरे पास 0 1 और 0 आ गया, उसके बाद चाहे 0 आए चाहे 1 आए, कोई भी कॉम्बिनेशन आए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय मी, तो वो भी क्या है हमारा डेड स्टेट की तरफ जाएगा एंड द रिजल्टेंट आउटपुट विल बी लाइक दिस। तो हमने बोला था कि जब भी Q1 से जाना है तो 0 एंड 1 की कोई भी पॉसिबिलिटी आए एक डेड स्टेट की तरफ ले जाओ। 0 यहाँ पर कवर हो रहा है, 0 एंड 1 दिस साइड, यहाँ पर भी 0 एंड 1 में से कुछ भी आ जाए हम लोग डेड स्टेट की तरफ आ जाएंगे। अगर फर्दर अब हमारे पास क्या है, सभी के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 कवर हो चुके हैं, लेकिन हमने जो एक नई डेड स्टेट इंक्लूड की वहां पर भी हमें एक 0 1 लगाना जरूरी है, क्योंकि हर एक पॉसिबल स्टेट, जितनी भी स्टेट्स यहाँ पे हैं, चाहे वो फाइनल स्टेज हो, स्टार्टिंग स्टेज हो, इंटरमीडिएट हो या डेड स्टेट हो, किसी भी तरह की स्टेट है, आपको वहां पर 0 और 1 मतलब जितने भी आपके पास इनपुट सिंबल्स हैं, अगर 3 होते 5 होते 2 है 1 है, जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे यहाँ पे लगाने जरूरी है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न जो है वो फॉलो होगा कि हमें सबसे पहले कोई भी एक, अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं तो आप एक स्ट्रिंग जनरेट करो, देन आपको दूसरा स्ट्रिंग जनरेट करना है, एंड देन फिर आपको जितनी भी डेड स्टेट्स हैं, जितनी भी एक्सेप्शनल या अनएक्सेप्टेड स्टेट्स हैं, जितनी भी आपके पास रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स के लिए स्टेट्स आएंगी, वो सारी की सारी रिजेक्टेड स्टेट की तरफ डालनी है। ओके, हाँ जी, ये क्लियर है सभी को? हम्म, अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप लोग करोगे। ऑल राइट, ठीक है, अब आप लोग ये एग्जाम्पल करोगे दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए ओवर अल्फाबेट 0 and 1 that accept all the strings that end with 101। हमारे पास एंड में 101 आना चाहिए, उससे पहले कोई भी कॉम्बिनेशन आता जाए, ऐसे ऐसे स्ट्रिंग्स के लिए हमें एक डीएफए जनरेट करना है। आप 4 to 5 मिनट्स ले लो और वही पैटर्न फॉलो करना एंड ट्राई टू क्रिएट इट। जिसका भी हो जाए एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
वीडियोज़ हुए हैं उनकी वीडियोज़ जो हैं वो मैंने शेयर की थी गूगल क्लासरूम में, आपके रिस्पेक्टिव मटेरियल के साथ डिस्क्रिप्शन में एडेड है लिंक, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। Yes, Nancy, you can show that. One and before this any string will be possible. Right, मानसी, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है, बाद में हमने किया था। नाउ यू हैव कवर्ड। हाँ जी, मैम वॉइस नहीं आ रही सही तरह से। अच्छा, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मानसी, आपने जो बनाया है डीएफए एक्सेप्टेड स्टेट्स के लिए बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें देखना है कि क्या आपका आवाज नहीं एक, सही आ रही। हाँ जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? माइक प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। मैम माइक प्रॉब्लम है। ओके, नाउ इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, ओके। मैं ये बता रही हूँ कि आपकी जो भी आपने स्टेट्स बनाई हैं वो स्टेट्स एक्सेप्टेड स्टेट के लिए, एक्सेप्टेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए ओके हैं, लेकिन अब हमें क्या देखना है कि आपका हर एक स्टेट 0 और 1 बोथ स्ट्रिंग्स के लिए कोई ना कोई पाथ फॉलो कर रहा हो और रिस्पेक्टिवली मुझे एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड टर्म की तरफ लेके जाए। नाउ यू हैव टू ऐड दैट। ठीक है मानसी? मैम। हाँ, वो कर लीजिए, बाकी करेक्ट है, वेरी गुड। ओके मैम। मैम ये आप देखना। हाँ जी, जस्ट सेकेंड। 0 1 इट्स आयुषी। यस मैम। 0 1 0 मैम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हैदर जस्ट वेट। आयुषी आपका एक मिनट, आप अगर ईयरफोन्स लगा लो तो बेटर है, क्योंकि मेरे को मेरी आवाज इको हो रही है। ओके मैम। हाँ, यस मैम। हाँ जी आयुषी, शो कर दो अपनी कॉपी। जी, अभी ना यहाँ पे ये मिस्टेक है, 101 वाला करेक्ट है, जो आपका टॉप पे स्ट्रेट लाइन जा रही है, लेकिन फिर देखो जो आपकी सेकंड स्टेज आ रही है 1 के बाद चेंज होके Q1 पे दोनों के जो आपके ट्रांजिशंस हैं बोथ आर फॉर 0, तो नीचे वाले पे 1 आएगा। अगर Q1 पे 0 जाएगा देन इट विल मूव टुवर्ड्स Q2, अदरवाइज 1 आएगा देन उसे क्या है, डेड स्टेट की तरफ जाना है। सिमिलरली Q2 की तरफ 1 जाता है तो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, और आपने दोनों पर 1 1 लिखा है, 1 इज 0 एंड 1 इज 1, ऐसे आएगा। सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, बाकी करेक्ट है। आई होप यू गेट इट। मैं करूँ मैम? स्क्रीन शेयर कर रखी है। हाँ जी हाँ जी, आप कीजिए इधर। मैम ये Yes. 1 0 and 1 1 towards Q4 0
एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। हाँ जी हैदर सही है ये बिल्कुल, लेकिन सिर्फ क्यू नॉट पर देखिए। क्यू नॉट पे मैंने बोला है दैट एनी स्ट्रिंग विच इज एंडिंग विद 101। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है 10101, तो ये 101 से एंड हो रहा है, लेकिन स्टिल इसके स्टार्टिंग में 1 और 0 आएगा। तो इसका मतलब क्यू नॉट पे अगर आप 0 हटाकर एक सेल्फ लूप लगा दो, ठीक है मैम। है ना, एक सेल्फ लूप आएगा, कुछ और भी चेंजेस आएंगी। बस आपका स्टार्टिंग वाले वो पोर्शन गलत है, बाकी Q1 Q2 और Q3 Q4 की ट्रांजिशंस वो सारी सही हैं। मतलब आप ठीक है स्ट्रिंग एज्यूम कर लो कि अगर मेरे पास 10101 है तो वो कैसे एक्सेप्ट होगा। ओके मैम। हाँ जी ओके एनीवन एल्स। yes राधिका, what you have written is just for the accepted strings, उनके साथ बाकी रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स भी ऐड कर लीजिए। okay anyone else who have done this? रोहित। वन जीरो वन। ओके रोहित ये भी सही है, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कर रहे हैं। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में डिफरेंस क्या है? दैट डिटर्मिनिस्टिक says that for every transition I will have a determined path and determined state, कि अगर आपके पास Q0 से लेकर 1 इनपुट दिया तो उसके लिए सिर्फ एक ही पाथ होना चाहिए। आपके स्टार्टिंग में क्या है, मल्टीपल पाथ्स जनरेट हो रहे हैं। सो DFA गलत है ये। हमें सिर्फ एक एक सिंबल के लिए एक ही एरो होना चाहिए, ये है मेरे कहने का मतलब। ओके मानसी इज डन। ठीक है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार, बाकी लोग भी देख लीजिए। सो दैट इज एंडिंग विथ 1 0 एंड 1, राइट। तो हम लोगों ने बोला कि अगर आपके पास 1 0 और 1 आ जाए देन इट शुड एंड विद दैट। और यहां तक आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है कि उसके बाद जितनी भी आपके पास रिजेक्टेड स्टेट्स आती हैं वो आपको डेड स्टेट में डालनी है। फर्दर उसके बिना अभी हमें क्या करना है कि अगर मेरे पास 1 0 1 0 और 1 आ जाए तो जो चीज मैंने हैदर को बताई। शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है, जस्ट अ सेकेंड में करती हूँ। हाँ जी अब विजिबल है। हाँ जी मैम विजिबल है। विजिबल मैम। यस मैम विजिबल है। राइट तो हम लोग इस चीज की बात कर रहे थे, टू कंस्ट्रक्ट अ DFA ओवर दिस अल्फाबेट। तो हम लोगों ने एंडिंग विद 101 के लिए एक पाथ जो है वो डिजाइन कर लिया। उसके बाद जो आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर लिया था कि जो हमारी इनिशियल स्टेज को छोड़कर बाकी की स्टेजेस हैं। नहीं है, सो ही नहीं हो रहा स्क्रीन। रुको 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 वो तो विजिबल तो है मैम। आई विल प्रेजेंट इट अगेन। अब विजिबल है सबको? यस यस मैम। मैम। हाँ जी मैम। ठीक है जी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि यहाँ तक मोस्टली सभी ने कर लिया है कि आपकी स्ट्रिंग जो है 101 सिंगल 101 स्ट्रिंग यहाँ पर आ रही है। उसके बिना
जो आपने रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स लेनी थी 101 के बाद, वो भी सारी आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अब जो चीज हमने डिस्कस की थी कि अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रिंग हो विच इज 10101, ये भी एंड हो रहा है 101 के साथ, लेकिन इससे पहले 10 जो है वो भी आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, 101 अगर आपके पास सिंगल स्ट्रिंग है वो तो यहीं से एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर उसके बाद इस 1 के बाद आपके पास कुछ 01s आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक लूप चला दिया दैट फॉर एनी 0, दिस वन, कि अगर आपके पास कोई भी 0 आए, अगर 1 के बाद सिंपली 0 आता है तो रिजेक्ट कर दो, लेकिन अगर 1 के बाद कोई 0 1 का कॉम्बिनेशन आता है तो आपको क्या करना है, 0 एंड देन 1, आपको मूव करना है फिर से एक्सेप्टेड स्टेट की तरफ। तो अब अगर आपके पास 101010 के कितने भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आएंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फर्दर अगर आपके पास इस 101 के बाद एक 1 आ जाता है या फिर नंबर ऑफ वंस आते हैं, कंसेक्यूटिव वंस आ जाएं, तब हमने क्या किया है कि उन 1 के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मूविंग बैक स्ट्रिंग जो है वो नहीं रखा। तो क्या है, एक लूप चाहिए टू कवर दैट 0 1 0 1 एंड देन अगेन, अगर यहाँ पर अगेन 0 आ जाए देन इट विल बिकम रिजेक्टेड। और बाकी के ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये हमने क्यों लगाया कि अगर सपोज हमारे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है विच इज सेइंग एप्सिलॉन और विच इज सेइंग ओनली 0 या 0 कॉम्बिनेशंस जो है, उन्हें कवर करने के लिए हमने इस 1 को छोड़कर एक्स्ट्रा एक ट्रांजिशन बनाया कि अगर 0 आए तो आपको इस स्टेज पर जाना है, अगर आपके पास फिर से 0 आए देन अगेन डाई स्टेट। लेकिन अब एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि अगर 0101 आ जाए, वो भी 101 के साथ एंड हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें 0 के बाद हम इसका ट्रांजिशन दोबारा से उस 101 की तरफ कर देंगे, that it is starting with 0 and for any 1010 combinations it will also get accepted। तो ये थोड़ा ट्रिकी था। इसके अलग अलग डीएफए जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग तरह के डीएफए हो सकते हैं। हाँ जी मैम, अगर 001 आए इसमें तो अगर यहाँ पर है 0 0 and then 1, एक्सेप्टेड हो जाएगा। it is also accepting that। 101 के लिए बनाया था हमने तो। राइट। सो इन दैट केस फिर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू चेंज दिस, वी हैव टू एड अनदर स्टेट, इसमें एक और स्टेट आएगी, ठीक है। हाँ, इसमें जो लास्ट वाली सिचुएशन है दिस वन, ये जो स्ट्रिंग है ये गलत है। अच्छा, आप में से कोई बना सकता है इसके लिए? I will correct this in the final presentation. I will correct this automata. So generally the thing is that we have to firstly take what is the accepted one and then we have to create all of the possible combinations for that। उसके बाद जितने भी rejected states आपके पास आते हैं वो सारे हमें कवर करने हैं। जो हमने पहले किया था ये कुछ इजी था क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही थी उसमें सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग्स थे, लेकिन विच इज एंडिंग विद 101 तो वहां पे मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। ये अगर हम बात करें सिंपल 101 1101 0101, कोई भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो आपके पास बेसिकली ये 101 कॉमन है, उसके बिना आपके पास आगे एनी n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है वो बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये ऑटोमेटा था जनरेट करना था। ओके, एक ऑल्टरनेटिव वे ये हो सकता है, इफ आई स्टॉप एट दिस स्टेज और यहाँ पर अगर इधर आगे हम लोग एक लूप लगाने की कोशिश करें, दिस कैन बी एन ऑल्टरनेट वे, और उससे क्या है हमारे सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो कवर हो जाएंगे।
ठीक है, आप लोग ये ट्राई करो, अदरवाइज इन द फाइनल प्रेजेंटेशन जो अपलोड होगी उसमें मैं करेक्टेड आंसर जो है वो डाल दूंगी. टिल द टाइम यू कैन ट्राई दिस. ठीक है. ओके, दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये आपके असाइनमेंट का पार्ट होंगे. अगर आपको यहीं से नोट करने हैं आप कर सकते हो, अदरवाइज आई विल पोस्ट इट इन योर गूगल क्लासरूम. ओके, डीएफए में किसी को कोई भी डाउट हो, ट्रांजिशन टेबल्स में, ट्रांजिशन ग्राफ्स में, जो भी हमारे 5 टपल मशीन था उसकी डेफिनेशंस में, तो आप बता दीजिए. Anyone is having any doubt till DFA? ओवरव्यू, प्रीतेश, ओवरव्यू बस यही है कि आपको दो चीजें हो सकती हैं. एक, आपके पास एक लैंग्वेज गिवन होगा. लैंग्वेज का मतलब है आपके पास एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होगा. उन स्ट्रिंग को एनालाइज करके आप लोगों को डीएफए जनरेट करना है. उसके पाथ, उसका तरीका जो है, स्टेप्स जो है वो हमने अभी देखे हैं. कि अगर आपके पास एक सिंपल स्ट्रिंग था 1 and 101, तो उसके लिए आपको कैसे पाथ फॉलो करना है, कैसे एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स बनानी है, सबसे पहली बात. और फिर आपको वहां पर डिफाइन करना है कि 5 टपल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं. आपकी मशीन के अकॉर्डिंग कैपिटल क्यू का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कौन से हैं. देन योर क्यू नॉट विच इज इनिशियल स्टेज, एंड देन कैपिटल एफ विच इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. उसके बिना आपका ट्रांजिशन कैसे जा रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. प्लस एक फिफ्थ वन इज योर सिग्मा. सिग्मा इज योर अल्फाबेट सेट. 5 टपल्स आर रिक्वायर्ड, ये आपको मेंशन करने हैं. ये मेंशन करने के बाद ट्रांजिशन सिंबल को इलेबोरेट करके आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना है. वो टेबल जब आपका ऑटोमेटा बन जाएगा उससे एनालाइज करने के बाद आप बनाओगे. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपके पास एक 2D मैट्रिक्स होगा जिसके रोज में आपको स्टेट्स लिखनी है, कॉलम वाइज आपको अल्फाबेट सेट्स लिखने हैं, and then with that combination you have to apply transition function on each. और हर एक के ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको उनके आंसर्स लिखने हैं. वो आपका फाइनल ट्रांजिशन टेबल होगा. मैम यस हैदर. पंकज जरा एक बार देख लो. हाँ जी, श्योर, दिखाइए. एक मिनट. This is one, 0 and 1. Yes, everyone check this. आप लोग, हम सभी एक अलग अलग स्ट्रिंग्स लेकर देखते हैं एंड वी कैन चेक कि क्या वो स्ट्रिंग्स पॉसिबल है या नहीं. ओके, आई एम राइटिंग अ स्ट्रिंग. डबल 1, 0 1 एंड 0 1, और हमें चेक करना है कि क्या ये एक्सेप्टेड है या नहीं. सो पाथ विल बी एज 1 1, देन 0 1 0 एंड 1 एक्सेप्टेड है. If I will take 0 1 0 1,
0 1 0 and 1. Yes, this is also accepted. 1 0 0 1 0 and 1. Yes, I think Heather this is correct. एक रिजेक्टेड स्ट्रिंग अगर हम लेकर देखें यहाँ पर 001 रिजेक्ट होगा 001010. आई एम राइटिंग दी स्ट्रिंग्स इन द चैट बॉक्स, आप लोग देख सकते हो. 00 देन 1 0 1 और 0 के बाद Q4 स्टेट पर आ जाएगा विच इज रिजेक्टेड. हाँ जी हैदर दिस इज करेक्ट. ठीक है. हाँ okay, I think now this is clear to all of you. हाँ जी, किसी को भी किसी चीज में डाउट है तो बता दीजिए. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स रेगुलर लैंग्वेजेस. हैदर आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए. ओके, मूविंग ऑन. आई गेस सभी को समझ में आ गया है. नेक्स्ट आर द रेगुलर लैंग्वेजेस. अब हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस हो सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सिग्मा स्टार. सिग्मा स्टार्स मीन्स कि उस अल्फाबेट सेट के लिए जितना भी पॉसिबल आपके पास लैंग्वेजेस के सेट्स हैं उन सभी को कंबाइन कर लिया जाए. दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सिग्मा स्टार. तो उनमें से कुछ लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस और कुछ होती हैं हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस. तो इन जनरल डेफिनेशन हम लोग ये बोलते हैं कि जितनी भी लैंग्वेजेस के लिए एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक डीएफए जनरेट हो सकता है वो लैंग्वेजेस हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस आती हैं. मतलब जिन भी लैंग्वेजेस के लिए जिन भी प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास डीएफएस पॉसिबल हैं उन्हें हम रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो लैंग्वेजेस कुछ डिसीजन मेकिंग जो है वो रिक्वायर करती हैं. जैसे एज एन एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरे पास एक लैंग्वेज है एक लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग्स जो है मैंने आपको लिखे हैं. यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को कंक्लूड क्या हो रहा है? अगर इसी चीज को मुझे जनरलाइज करना है कि इवन नंबर ऑफ वंस हैं इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं क्या चीज है आप बता सकते हो फॉर दिस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. मैम नंबर ऑफ 0 इक्वल्स टू नंबर ऑफ 1. यस करेक्ट. आपके पास ये ऐसा ऑटोमेटा या ऐसी मशीन हम लोग डिजाइन करने के लिए बोल रहे हैं जहां पे आपके पास नंबर ऑफ जीरोज जो है नंबर ऑफ वंस के बराबर होने चाहिए. अब आप लोग इस चीज को अगर ऑटोमेटा बनाने की कोशिश करो डीएफए बनाने की कोशिश करो तो इसके लिए डीएफए जो है वो कभी भी नहीं बनेगा. डीएफए नंबर ऑफ इवन्स इक्वल्स के लिए बन सकता है कि आपके पास जीरोज इवन आए वंस इवन आए या वन जीरोज ऑड आए वंस इवन आए ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि अगर 4 जीरोज हैं 4 ही वंस आए ये कभी नहीं बनेगा बिकॉज दिस रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग कि जिसमें आप चेक कर सको कि अगर हमारा जीरो जो है वो 4 पर स्टॉप कर गया देन वी हैव टू स्टार्ट द लूप फॉर 1 जो कि अगेन हमारे 0 पर या 4 पर जो है वो स्टॉप करे जो चीज यहाँ पे डीएफए में पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही एक एग्जाम्पल है कि जो हमने पहले देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा के एग्जाम्पल्स में कि अगर मेरे पास अल्फाबेट सेट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस आ रही हैं इन ब्रैकेट्स के लिए अगर आपको चेक करना है कि आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस हैं और आपको देखना है कि क्या ये पूरा सेट बैलेंस्ड है या नहीं
यहाँ भी क्या चाहिए आपको, हमेशा एक ओपनिंग ब्रैकेट्स जो हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस जो हैं, उनका एक काउंट रखना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी ओपनिंग पैरेंथेसिस आ गई हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस है या नहीं। अगर होंगे देन इट विल एक्सेप्ट, अदरवाइज इट विल रिजेक्टेड। तो इसके लिए भी हम लोग क्या है, कोई भी जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है वो जनरेट नहीं कर सकते। तो these type of languages where one of your symbol depends on other, उनको हम बोलते हैं कि these are non-regular languages. Whether any other language except these type of languages and which are accepted by your DFA, वो होती हैं हमारे पास regular languages. Okay? I think clear है? आवाज सभी को आ रही है clear? Yes, ma'am. Okay जी. So regular and non-regular languages are clear? Okay. Yes, ma'am. So if I would be writing some of the examples, you have to tell me that whether it is a regular language or not. Alphabet set है A comma B. Any languages which is having at least two A's. Is this regular or non-regular? Simply we have to check that whether any symbol or any alphabet is depending on other or not. Anmol, we will discuss about it later while we will take attendance. Attendance आज भी आपकी मैनुअली होगी, तब we can discuss this. हाँ जी, ये बताइए whether this is regular or non-regular. अगर इसके लिए अभी मुझे स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है, एटलीस्ट 2 A's मेरे पास होनी चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम इट कुड बी एनी नंबर. कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. यस एजाज, दिस इज रेगुलर लैंग्वेज, करेक्ट है. राइट, दिस इज रेगुलर. हमारे पास नंबर ऑफ एज जो है वो एटलीस्ट 2 होनी चाहिए. अब नंबर ऑफ एज जो है वो बी पे तो डिपेंड नहीं कर रही. हम लोग डायरेक्टली कुछ ऐसा ऑटोमेटा जनरेट करेंगे जिसमें कम से कम 2 एज आए और उसके बाद हम लोग उसी चीज को सेल्फ लूप पे लगा देंगे. सो दिस इज पॉसिबल बाय डीएफए. तो ये रेगुलर लैंग्वेज है. वहीं अगर हम लिखें language which is having equal number of A and B. Yes, अब visible है. हाँ जी, a language which is having equal number of A and B. Yes, Anisa is correct.
अगर हमें बोला जाए इक्वल नंबर ऑफ एज हैं, तो अगर आपके पास पहले चेक करता है आपका मशीन एज को, तो ए का एक काउंट उसे रखना पड़ेगा और उसके बाद वो उससे कंपेयर करेगा जितना भी काउंट बी का आएगा, फिर वो हमें डिसीजन देगा। सो दिस कैन नॉट बी जनरेटेड बाय अ डीएफए। हम लोगों ने जो एग्जांपल्स की हैं, जो मेथड फॉलो किया, उसके थ्रू अभी हम लोग ऐसा कोई भी मशीन जनरेट नहीं कर सकते। दिस इज अ नॉन रेगुलर वन। Okay, now moving to the presentation. So simply, the regular languages can be described in a number of ways, one of which is your deterministic automata, and generally we say that the languages which are accepted or which can be created using any deterministic automata are known as regular languages. Its examples are, if I am having any language which is following a string W, where this W can be generated from this alphabet set 0 and 1, provided a condition that this W is to be divisible by 3 only. So अब हमें 0 और 1 अल्फाबेट सेट है हमारे पास, 0 और 1 से ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिनमें आपके जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स आएंगे, वो डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। मतलब या तो 3 इंटीजर्स हों कोई भी कॉम्बिनेशन के, और 6 और 9 और एनी मल्टीपल ऑफ 3। अगर आपके पास वैसे कोई भी नंबर्स आएंगे, वही आपके ऑटोमेटा से एक्सेप्टेड होने चाहिए। तो क्लियरली कोई भी 0 और 1 का कॉम्बिनेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वी कैन क्रिएट अ डीएफए, सो दैट मीन्स इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज। इनके बिना हम जो लैंग्वेजेस अभी तक कर चुके हैं, हमने सबसे पहले किया था एक सिंगल लैंग्वेजेस ABP, ए एक्सेप्ट करा था। उसके बाद कल हमारा सेकंड एग्जाम्पल था जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग AB और ABBA इनको एक्सेप्ट करे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी किया था दैट एनी नंबर ऑफ एज आए प्लस एक सिंगल बी एंडिंग विद द सिंगल बी हो, वो चीज को एक्सेप्ट करवाना है। All strings that starts with AB combination, this can be possible. All binary strings without substring 0 0 and 1, this can be possible. ये सारे strings जो हैं इनके लिए जो हमारे ऑटोमेटाज हैं बन सकते हैं। Example of non-regular languages can be, we are having any two symbols, two alphabets, and if we say that any count of any one symbol depends on other, 0 raised to the power n and 1 raised to the power n, where n can be any integer. So such sort of languages cannot be accepted or designed, such sort of automatas cannot be designed using deterministic automata types. नेक्स्ट पैरेंथेसिस एग्जाम्पल, यहाँ पर भी ये चीज क्या है, डिपेंड कर रहा है दूसरे पे। एंड द नेक्स्ट वन इज कि अब मेरे पास है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू z होना चाहिए, एंड x एंड y आर एनी रैंडम कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 रेज़ टू द पावर n और m। ये m और n है, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। मतलब आपके पास एक नंबर आ रहा है, आपको उतने टाइम्स वो नंबर लेना है और एक अलग नंबर ऑफ टाइम्स एक दूसरा नंबर लेना है। नाउ सिंस दीज टू नंबर्स आर not these m and n are not depending on each other but their bases are same, तो इसके लिए भी क्या होगा, हमें पहले ये चाहिए कि हमारे पास क्या, सपोज इस चीज के लिए मेरे पास है 1 रेज़ टू द पावर 0 एंड देन 1 रेज़ टू द पावर 1 रेज़ टू द पावर 2 एंड देन 1 रेज़ टू द पावर 3। तो मुझे पहले देखना होगा कि अगर मेरे पास पहले दो वंस जो है वो आ चुके हैं, 1 1 इज देयर, वी हैव टू चेक दैट कि n क्या था, और उस n के अकॉर्डिंग हम क्या है अपना नेक्स्ट m जो है वो जनरेट करेंगे। तो इस तरह की लैंग्वेजेस भी हैं, वो भी डीएफए के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होंगी। इनके लिए हम लोग आगे पीडीएज या ट्यूरिंग मशीन्स जो है वो रीड करेंगे, वहां पर ये चीजें क्या है एक्सेप्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो ओके, आई थिंक रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लियर।
Okay, ji. So that is it for today's class.